Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture is the continuation of our previous lecture on stylistics. While in our previous lecture we have already talked about the what is stylistics, what is style and rhetoric, and you can say we have also discussed the history of stylistics, and we have also related this to rhetoric. In today's lecture, we will be talking briefly about the branches of stylistics. As far as the branches of stylistics are concerned, there are many branches, you can say, but with regard to this lecture, we will be talking about only those branches of stylistics which are important for the basic understanding. And once you have understood these branches of stylistics, then you can build upon these branches and you can study more. So the branches of stylistics, the first branch is called you can say literary stylistics. Literary stylistics, it is also called literary linguistics. Literary linguistics are just stylistics. It means that we use the stylistics, literary linguistics, and literary stylistics. So these are, you can say, the same things. It deals with the study, analysis, and interpretation of literary works. And you know very well that my lecture is primarily meant for those students who are studying English language and literature, or any, you can say, literature, so that they can be able to understand this very easily. So in literary works, you can say there is one element that is called literariness. Please, if you want to read about literariness in a detailed manner, what you can do is that you can listen to my lecture on Russian formalism. You know that Russian formalism was a school of, you can say, the school of theory that you can say that you can say apply the linguistic insight to the study of literature. So first of all, what is called literariness? What is literariness? According to Russian formalists, what makes a literary text different from all other texts is literariness, the special use of language different from ordinary language. ये लोग ये कहते हैं कि जो लिटरेचर की टेक्स्ट होती है, जो लिटरेरी टेक्स्ट होती है और एक नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होती है, उसका फ़र्क कहाँ से हमें मालूम होता है? ज़ुबान से मालूम होता है। ठीक है, कि यानी जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, दूसरे वो और तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो लिटरेचर होगा उसके अंदर जो ज़बान होती है वो एक और तरह से इस्तेमाल होती है। ठीक है, और उस ज़ुबान के ज़रिए उस लिटरेरीनेस के ज़रिए हम जो है ना, हम पहचान सकते हैं कि फ़लाँ टेक्स्ट लिटरेरी और फ़लाँ टेक्स्ट नॉन लिटरेरी। अब देखें, इसकी एग्जांपल ले लें। ये देखें H.W. लॉन्गफेलो की मैंने वर्स कोट किया है। कहते हैं लाइफ इज़ डियर, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, डस्ट टू आर्ट अन टू डस्ट शेल रिटर्नस वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब देखिए इसमें राइम्स की मुस्तक इस तरीके से इस्तेमाल की है। फिर इसके बाद देखिए किसी मतलब ग्रेव का मेटाफर है, फिर इसके बाद जो है सोल मेटाफर के तौर पे यूज़ की गई है, गोल मेटाफर के तौर पे यूज़ किया गया है। तो इसमें जो ये लिटरेरीनेस होती है, ये हमने एग्जाम्पल ली इंग्लिश के साथ। अब इसके अलावा उर्दू के अंदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल की नज़्म है शिकवा। शिकवा के अंदर कहते हैं क्यों ज़याकार बनूसूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फलदा ना करूँ, महवे तन दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हम तन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी गुल हूँ कि खामोश रहूँ। ठीक है, जुर्रत अमोज़ मेरी ताबे सुहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से हाकिम बदहन है मुझको। ठीक है, अब इसमें देखें कि अल्लामा इकबाल जो जिस ज़बान को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी यहाँ ज़बान का जो इस्तेमाल होता है उससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि लिटरेरी ज़बान इस्तेमाल हुई है। या जैसे इस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। तो ये भी एक लिटरेरीनेस होगी ना। इसके बाद देखिए मैंने एक पंजाबी के अंदर एक वर्स कोट किया है। कहते हैं ना सोने नाल न पित्तल रलदे, सुरमे नाल न कोले। देखें ना, अब यहाँ क्या कहते हैं, सोने और पित्तल को कंपेयर किया जा रहा है, पीतल को। इसके बाद देखें सुरमे और कोले को, कोयला जो होता है उसको कंपेयर किया जा रहा है। कावां दी की कदर मोहम्मद जिथे बुलबुल बोले। तो देखिए बुलबुल और जो होता है ना, जो कवे होते हैं, कव जो क्रोज होते हैं, उनके सॉन्ग को कंपेयर किया जा रहा है। तो ये लिटरेरीनेस होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिटरेरीनेस कैसे अचीव होती है, उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अलिट्रेशन होती है, द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द लाइन। जैसे देखिए ये एस टी कॉलरेज की पोइम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसके अंदर देखिए वो कहता है द फेयर ब्रीज ब्लो द वाइट फॉर्म फ्लो। देखिए फ की साउंड आ रही है और ब के साउंड जो होता है ना ये आ रही है। ठीक है, लिटरेरीनेस एक अचीव हो रही है। जिस तरह इसी लिहाज से अगर आप देखें, वो शायर है ना उसका विलियम डेविस, तो वो कहते हैं ना कि
What is this life is full of care? We have no time to stand and stare. अब देखो टाइम आ रहा है ना, स्टैंड स आ रहा है, तो ये इलिट्रेशन होती है, ठीक है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउ, तो ये इलिट्रेशन भी इस्तेमाल करते हैं जो शायर होते हैं लिटरे। इसके बाद राइम होता है। राइम ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह इस्तेमाल हो, लेकिन राइम होती है, ठीक है। वर्ड्स विद आलमोस्ट द सेम सन, यानी ये होता है। अब देखें ये एक ड्रामा है, इसमें मैंने मिसाल दी है कि दिस ड्रामा इज़ रिटन बाई बर्टोल ब्रेस्ट। बर्टोल ब्रेस्ट भी कहते हैं, ब्रेस्ट भी कहते हैं। असल में इसकी वजह ये क्योंकि जर्मन ड्रामाटिस्ट था, तो उसका ये ना उसका बड़ा कमाल का ड्रामा है। कभी आपको मौका मिले आप इस ड्रामे को लाजमी पढ़िएगा। ये एपिक थिएटर की एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल है जो ये जो ड्रामा है, ठीक है। यानी एक एरिस्टोटेलियन थिएटर होता है, एक होता है एपिक थिएटर, ठीक है। एपिक थिएटर के अंदर जो था ना, ये देखें ये ड्रामास के अंदर ना, ये हर चैप्टर का आगाज़ जो था ना ड्रामे का, हर सीन का आगाज़ वो एक शेर से करता है, ठीक है। यानी बर्टोल ब्रेस्ट जो होता है, या बर्टोल ब्रेस्ट, वो कहता है, देखें इसको अगर राइम स्कीम को देखें कितनी खूबसूरत है। मुझे ना ये काफ़ी खूबसूरत लगी थी, इसलिए मैंने इस शेर को कूट के कहता है। इन द ईयर 1609 साइंस लाइट बिगेन टू शाइन in Padua on a modest home. Galileo Galilei would set out to prove the sun is stationary and the earth is unmoved। अब देखा ना कि राइम सिम कितनी खूबसूरत है, यानी नाइन, शाइन, होम, प्रूव, मूव, ठीक है। ये कितनी खूबसूरत तरीके के साथ लाइनों को मतलब बनाते हैं, तो ये होता है राइम। इसके बाद मेटाफर जो होता है ना, मेटाफर समझे कि ये एक लिटरेचर की एक जान होती है, लिटरेचर की सोल होती है मेटाफर जो होता है। लिटरेचर के अंदर लैंग्वेज यूज़ की मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जैसे देखें कि द प्रेजेंटिंग ऑफ वन थिंग एज इफ इट वर द अदर, ये स्टार जिसे हम कहते हैं। जैसे देखिए अब इसमें ये मैंने पोइम ली है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट खास तौर पे मेटाफर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। अब वो कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ठीक है। अब बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर अ स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर अ स्लीप। अब इसमें स्लीप भी मेटाफर है, क्योंकि स्लीप कौन सी है, ये फाइनल स्लीप का मेटाफर है, ठीक है। तो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप क्या था, ये जो था ना कि ये ब्यूटी का मेटाफर है, ठीक है। तो मेटाफर इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद देखें और भी मतलब डिवाइसेस होती हैं काफ़ी, सिमली होती है, स्नेकडी की होती है, मेटोनमी होती है। तो वो हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि उसको आप खुद आप तहकीक कर लें उसके ऊपर। इसके बाद जनरल स्टाइलिस्टिक्स। जनरल स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है? जनरल स्टाइलिस्टिक्स एंड कैंपस आ ब्रॉड रेंज ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज, ठीक है। ये तकरीबन जो सारी की सारी जो यानी जो होता है ना कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल तकनीक, ये सारी की सारी चीज़ें जनरल स्टाइलिस्टिक के अंदर आती हैं, ठीक है। यानी ये अमूमी जो था ना असलूबियात होती है, तो ये इतना अहम नहीं है। इसके बाद देखें फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक्स। अब फेमिनिज्म द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाउ वेरी वेल के जो अंग्रेज़ी इसमें देखते हैं हम, जो फेमिनिज्म की 3 मूवमेंट्स चली थी जो यूरोप के अंदर, 3 वेव, जिनको वेव 3 वेव्स कहा जाता है। फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, थर्ड वेव थी, ठीक है। तो उन्होंने जब ज़बान यानी इसमें उन्होंने अपने थेरीज बनाई ना, अपने थेरीज को प्रोपाउंड किया, यानी फेमिनिस्ट जो थे जिन्होंने फेमिनिज्म की थेरीज को मतलब प्रोपाउंड किया, उन्होंने ख़ास किस्म की ज़बान भी ज़ाहिर है, जब एक चीज़ को हम प्रोपाउंड करते तो उसमें ज़बान का भी एक फ़र्क आता है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें जी लिखा हुआ है कि फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक डील्स विद द ब्रांच ऑफ लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट, हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द टेक्स्ट टू कंट्रीब्यूट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटीज़, ठीक है। जैसे देखें ये मैं ना चंद दिन पहले ये नावल पढ़ रहा था अरुंधति राय का, द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोस्ट हैप्पीनेस। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोस्ट हैप्पीनेस के अंदर ये जो होते हैं ना जो ट्रांसजेंडर जिनको हम बोलते हैं, तो उनके मतलब बात की गई, तो फिर उनको उनकी ज़ुबान के तरीके के साथ ही बताया गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखें कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज एंड पावर, यानी हम इसमें ये पढ़ते हैं कि जो ज़ुबान होती है ना उसका पावर के साथ क्या लिंक होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन, स्टीरियोटाइप्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर कि हम जो है ना हम इसमें मुख्तलिफ अल्फाज हम इस्तेमाल कर, जैसे मिसाल आप इस चीज़ की यूँ ले सकते हैं कि हम पहले जो था हम कहते थे कि यानी मैन काइंड, तो मैन काइंड का लफ्ज़ आप जो था ना फेमिनिस्ट जो क्रिटिक थे उन्होंने इसको ऊपर ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने बोला कि मैन काइंड ह्यूमन काइंड हो, क्योंकि मैन काइंड के सिर्फ मैन की रिप्रेजेंटेशन आ रही है, वोमेन की नहीं आ रही, ठीक है। इस तरह जब हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना तो हम इसमें जो जेंडर बेस नहीं, हम जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। जेंडर बाइस्ड उससे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि यानी वन मैन शुड डू हिज वर्क, तो अब आजकल हम ये नहीं कहते, आज हम कहते हैं, ठीक है, कि मैन शुड डू देयर वर्क, ठीक है, हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है ना। तो या हम कहते हैं कि यानी समबडी यू कैन से एवरीवन शुड डू हिज वर्क, ये पहले हम कहते थे, एवरीबडी के साथ हम हिज लगा लेते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि एवरीबडी शुड डू देयर वर्क, ठीक है। इसका मतलब कि हम यानी या तो प्लूरल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको बचने के लिए कि यानी हम जो था ना यानी लैंग्वेज को जेंडर बाइस्ड ना करें,
हैं, ठीक है। ये होता है फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक। इसके बाद आता है जर्नलिस्टिक स्टाइलिस्टिक्स। ये जब आपने 5वें सेमेस्टर में जाना है तो आपको फिर उसमें जर्नलिस्टिक डिस्कोर्स आना है, विजन डिस्कोर्स और जर्नलिस्टिक डिस्कोर्स, उसमें आपने इसके डिटेल में पढ़ना है। तो ये क्या होता है, ये ज़ाहिर है अब अखबार जो होता है, ठीक है, अखबारात होते हैं या मीडिया होता है, ज़ाहिर उनकी एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज होती है, ख़ास किस्म का स्टाइल होता है जो उन्होंने डेवलप किया हुआ है। ज़ाहिर है आप खुद देखें कि आप यानी जो अखबारात की लैंग्वेज होती है, तो यानी यू सी दैट दिस इज़ डिफरेंट फ्राम द लैंग्वेज दैट इज़ यूज इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। उसका स्टाइल, उसका स्लोप, उसके अंदर वर्ड्स का, अल्फाज का चुनाव, तो ये जर्नलिस्टिक स्टाइलिस्टिक कहलाता है। तो वो कहते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज यूज एंड स्टाइल इन द जर्नलिज्म, फोकसिंग ऑन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड टेक्निक्स इम्प्लाइड पर जर्नलिस्ट इन देयर राइटिंग्स, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या आगे हम चीज़ें देखते हैं, जैसे देखें ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। पिरामिड स्ट्रक्चर का मतलब जब आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के अंदर डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है कि सबसे जो अहम जो खबर होती है वो सबसे टॉप के ऊपर होती है, फिर उससे कम नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके के साथ आप अखबार आप देखते हैं। आप उर्दू का न्यूज़पेपर देख लें, कोई भी दुनिया न्यूज़पेपर देख लें, जंग देख लें, अंग्रेज़ी में डॉन देख लें, द न्यूज़ देख, कोई भी आप देख लें, तो उसमें जो है ना इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल होता है कि यानी पहले ऊपर की जो बात सबसे अहम होती है, ठीक है, वो ऊपर होती है, फिर उसके बाद नीचे चलती 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 जाती है, ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखें कि हेडलाइंस होती हैं और लीड सेंटेंसेस। हेडलाइंस के साथ आपने देखा होगा अखबार के अंदर ना, हेडलाइन के साथ ना बुलेट्स के अंदर छोटे जुमले लिखे होते हैं, वो लीड सेंटेंसेस होते हैं। यानी हेडलाइन पढ़ने के बाद जब आप उन पर नज़र डालते हैं ना, तो आपको एक बुनियादी आइडिया हो जाता है कि यानी व्हाट इज़ इट अबाउट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस होते हैं कि अखबारात के अंदर आप बहुत लेंथ ही नहीं लिख सकते हैं, यानी आपने बड़ी क्लियर और बड़े कंसाइज वे में इंफॉर्मेशन को देना होता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रलिटी, यानी अखबार लिखते वक्त ज़ाहिर है आपने अखबार के अंदर जब हम कोई खबर देते हैं या कोई मतलब आर्टिकल लिखते हैं, जो एडिटोरियल में लिखते हैं, तो उसमें किसी के जज्बात को, किसी के मजहबी, लिसानी या किसी के कोई भी यानी जज्बात को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं होता, यानी बड़े एक तरीके के साथ उसको यूज़। फिर इसके बाद है यूज़ ऑफ एनेक्डोट्स, हाइपरबोले एंड सेंसेशनलिज्म, यानी बाज़ का आपने देखा अखबार के अंदर ना एक सेंसेशनलिज्म, यानी एक क्या कहते हैं कि हिजान अंगेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, सेंसेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होती है, हाइपरबोले मतलब एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा है। बाज़ का ऐसा भी वो करता है कि बात एक होता छोटी, लेकिन उसको क्या करता है बड़ा एग्जैजरेट करके बयान करता है। उसकी वजह क्या होती है कि इन ऑर्डर टू यू कैन से ड्रा द अटेंशन ऑफ द रीडर्स और द ऑडियंस, ठीक है। तो ये होता है जर्नलिस्टिक स्टाइल। अब इसके बाद आता है स्टाइलिस्टिक वेरिएशन, ठीक है। अब स्टाइलिस्टिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये वेरिएशन का टॉपिक जो होता है ना वो सोशल लिंग्विस्टिक के साथ भी डील करता है, ठीक है। आप देखें कि जब हम मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर होते हैं ना, तो हम एक जैसा स्टाइल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि हमने इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द काइंड्स ऑफ स्टाइल, ओके। हाई स्टाइल क्या होता है, मिडिल स्टाइल क्या होता है, लो स्टाइल क्या होता है, हमने पढ़ा है। तो हम अब हर जो ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि ऑडियंस, पर्पस, कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्ट मैटर, इसके लिहाज से हमारा जो स्टाइल है तो उसमें वेरी करता है। यानी हम अगर देखें हमारे ऑडियंस सामने कौन से बैठे हुए हैं, उसके हवाले उसके लिहाज से हम अपना स्टाइल को यानी वेरी करेंगे ना। अगर उसके हमारा पर्पस कौन सा है, यानी पर्पस क्या हमारा, उनको इम्प्रेस करना है, पर्पस हमारा क्या, उनको अपनी बात मनवाना है, उनको परसुएट करना है, या हमारा पर्पस जो होता है ना उनको रुलाना है या हंसाना है, तो ये जब हम ये करेंगे उसका स्टाइल वेरी करेगा। तो सब्जेक्ट मैटर जो मौजू के मुताबिक भी सब्जेक्ट स्टाइल वेरी करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यानी फ़र्ज़ करें कि अगर आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर को बंदा बात कर रहा होता है, तो उसने ये सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक अपने स्टाइल को डालना है ना। अब उसमें ये तो नहीं जुगत वाली करेगा, बहुत ज़्यादा शुगर लगाएगा, इसका मतलब है उसके अंदर उनको संजीदगी, एक बार अदब एहतराम, उस लेवल का स्टाइल, फिर उस तरह की वोकैबुलरी भी इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। तो ये तो स्टाइल वेरी करता है। अब जैसे देखिए मैंने लिखा स्टाइलिस्टिक वेरिएशन में, देखें जी ये पहली बात होती है कि कन्वर्सेशनल स्टाइल। अब कन्वर्सेशनल स्टाइल आप कहाँ अपनाते हैं, जहाँ आप दोस्तों में होते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुकानदारों के साथ आते जाते, ये दिस इज़ अ कन्वर्सेशनल स्टाइल, यानी यहाँ आप अपने स्टाइल को शिफ्ट कर लेते हैं। यानी आप अपने जिस तरह अपने टीचर से बात करते हैं ऐसे आप किसी दुकानदार से बात नहीं करते, ठीक है। तो ये एक फ़र्क होता है। इसके बाद टेक्निकल स्टाइल। टेक्निकल स्टाइल अब क्या होता है, आप खुद देखें कि यानी जो लॉ होता है या जो मतलब मुख्तलिफ इदारे होते हैं, जब वो अपने किसी मतलब अपने नोटिफिकेशन वगैरह लिखते हैं तो उनका स्टाइल टेक्निकल होता है, उनका आम स्टाइल आम फहम नहीं होता है, ठीक है। आप खुद देखें कि जब
ये हमारी अदालतों के फैसले होते हैं, हमारे एफबीआर के लोगों को नोटिस वगैरह आते हैं, तो वो आम स्टाइल नहीं होता है, वो बड़ा टेक्निकल किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्टाइलिस्टिक। इसके बाद देखें ये होता है जी लिटरेरी स्टाइल। ठीक है, लिटरेरी आपने हाँ ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि जब आप लिटरेचर लिखते हैं तो उसका स्टाइल डिफरेंट होगा ना। ठीक है, इसके बाद होता है फार्मल स्टाइल। अब फार्मल स्टाइल आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब आपने देखें अगर आपने लेटर टू एडिटर लिखना है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, या आपने फ़र्ज़ करें कि आपने कॉलेज के अंदर जो होता है ना, जब आपने यानी बात करनी है तो वहाँ आपका फॉर्मल स्टाइल होता है ना, वहाँ इनफॉर्मल तो नहीं होता ना। ठीक है, यानी जो दो दोस्त आपस में कन्वर्सेशन जिस तरह कर सकते हैं उस तरह आप यानी उस तरह क्लास में उस तरह कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद परसुएसिव स्टाइल। परसुएसिव स्टाइल का मतलब ये होता है कि ये वेरी करता है। वेरी कैसे करता है कि यानी हम जब किसी को प्रेजेंटेशन या लेक्चर दे रहे होते हैं ना, ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो क्या हमारा मकसद जो होता है दूसरे को परसुएट करना होता है। तो परसुएशन के लिए मैंने पीछे भी बताया हुआ था, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, लोगोस होते हैं, इथोस होते हैं, और इसके बाद होते हैं जो क्या कहते हैं पैथोस होते हैं। ठीक है, इसको आप उसके लिहाज से सुन सकते हैं। इसके बाद देखें सटीरिकल स्टाइल। आप देख लें सटीरिकल स्टाइल वो होता है जिसमें तंज किया जाता है। आप देखें कि कभी आप इंग्लिश लिटरेचर के तालब इलम जब इंग्लिश लिटरेचर की तारीख पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके अंदर 18वीं सदी का जो लिटरेचर होता है, 18 सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, उसे एज ऑफ सटायर भी कहा जाता है। एज ऑफ सटायर क्यों कहा जाता है कि उसके अंदर जोनाथन स्विफ्ट जिसने गुलिवर ट्रैवल लिखा, या उसमें देखें कि अलेक्जेंडर पोप जो थे उन्होंने द रेप ऑफ द लार्क लिखी, इस तरह मतलब उसमें जो राइटर्स क्या थे ज़्यादातर सटीरिकल वर्क्स लिख रहे थे, उनका जो स्टाइल क्या होता था वो सटीरिकल होता था। हाँ, अब सटायर जो था ना, जो टन्स होता है, तंज के जो दर्जे होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, अब आप रेप ऑफ द लार्क आप देखें, द रेप ऑफ द लार्क, तो उसके अंदर जो था ना बड़ा हल्का फुल्का सा एक मजाहिया किस्म का सटायर है। लेकिन इसके बरक्स जब आप गुलिवर ट्रैवल पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप जो गुलिवर ट्रैवल के अंदर जितने भी वो सफ़र करता है, जैसे लिलीपट है, इसके बाद ब्रॉबडिंग है, इसके बाद लप्यूट है, इसके बाद ह्यूनम है, तो जो मतलब वो आगे सफ़र करता है ना, जो गुलिवर है एक इमेजिनरी जो करेक्टर है, तो उसके जो स्टाइल होता है ना, उसका जो मतलब सटायर का जो लेवल होता है वो हार्श होता जाता है। ठीक है, तो ये एक फ़र्क होता है। ठीक है, यानी सटेरिकल स्टाइल भी होता है। इस तरह जब आप चौसर को द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखो वो सटायर करता है, लेकिन सटायर का हल्का फुल्का मज़ाक है, उसके अंदर फन है। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसी और राइटर्स को पढ़ें, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मंटो को पढ़े, तो मंटो जो होता है ना, जब मतलब सेक्सुअलिटी के ऊपर डिस्कशन करता है, तो बिल्कुल जो होता है ना वो एक मतलब बड़ा बास का तो उसका बड़ा हार्श हो जाता है। ठीक है, ये होता है। इसके बाद है कि इनफॉर्मल स्टाइल। इनफॉर्मल स्टाइल डेफिनेटली मतलब जो आप जिनके साथ आप फ्रैंक होते हैं, जो दोस्त आपके होते हैं, तो इनफॉर्मल स्टाइल होता है। तो सो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है टुडेज वी हैव डिस्कस्ड द ब्रांचेस ऑफ stylistics, and then we have also discussed the especially we have focused upon literary stylistics, and then we have studied stylistic variations। तो आप इस तरीके के साथ इसे कर सकते हैं। तो फिर आपसे मैं दोबारा ये कहूँगा कि आप इस ये जो लेक्चर ये आपके बुनियादी कंसेप्ट क्लियर करेगा, तो इसके साथ साथ आप जो अच्छी अच्छी किताबें होती हैं स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर लिखी हुई, आप अपनी रीडिंग उसको साथ लाजमी सप्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच।